الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لا تعداد درود و سلام کہ آپ کے نالین پاک کے صدقے اس وقت دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنی مہربانی ہے کہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر ساری زندگی سجدہ ریزی میں گزاری جائے تو پھر بھی کم ہے کہ چونکہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں کہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے ہر روز الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کے لیے خوشخبری، لوگوں کے لیے خوشی اور لوگوں کے لیے محبت کا پیغام بادشاہ سرکار کی زبان سے آپ لوگ سنتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ اس وقت ہم پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مدار کے سائے میں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت ختم نبوت کے عظیم سپہ سالار میری مراد صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بادشاہ سرکار کے ساتھ ہمارے اسی راول پنڈی باراکاؤ سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ بادشاہ سرکار نے اس سے قبل سینکڑوں لوگوں کو دم اور دعا کی اور پورے ہفتہ بادشاہ سرکار لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ بے شمار لوگ کوئی فالج میں، کوئی کینسر میں، کوئی جگر میں، مختلف مرضوں میں مبتلا بادشاہ سرکار کے پاس آتے ہیں، اپنی رپورٹیں لے کر آتے ہیں۔ بادشاہ سرکار ہم نے 7 دم کروائے تو میں فالج میں تھا، فالج ٹھیک ہو گیا۔ کسی نے کہا جی کینسر تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کسی نے کہا جی جگر ختم ہو گیا تھا، بادشاہ آپ کے 7 دموں سے میں ٹھیک ہو گیا۔ لیکن بادشاہ سرکار ایک بات کہا کرتے ہیں کہ جو ارادہ اور نیت صاف لے کر آتا ہے تو وہ صرف دیدار کر لے تو اللہ اس میں بھی اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بھائی ہیں اور یہ اپنی زبان سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مرض سے، اپنی تکلیف سے آگاہ کریں گے۔ ان کے ساتھ ان کے گھر والے ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بغیر دم کے بھی جو اللہ والوں کی نگری میں آ جاتا ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہاں سے آئے؟ باراکاؤ سے تشریف لائے ہیں۔ میں پہلے بہت دفعہ آ چکا ہوں لیکن اپنی بیماری کے سلسلے میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ بڑی ان دنوں میں کشش تھی آپ سے ملنے کے لیے اور الحمدللہ میں گھر میں رہتا ہوں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں لیٹا ہی رہتا ہوں، اٹھ نہیں سکتا میں۔ اور آج بھی میں گاڑی کو لیٹ کے آیا ہوں اور الحمدللہ یہاں سے بیٹھا ہوں، ٹھنڈ میں بیٹھا ہوں لیکن مجھے تکلیف نہیں ہوئی کسی قسم کی، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہاں سے جاؤں گا تو شفا پا کے جاؤں گا الحمدللہ۔ تو یہ آپ کے گھر والوں کے جو زبان بند تھی کتنے سے اور کب آپ؟ جی یہ تقریباً مہینے 1.5 سے اس کی آواز کا یہ سلسلہ تھا کہ یہ بولتے بولتے اس کی آواز کبھی بار بند ہو جاتی، پھر شام کو کھل جاتی، ہلکی سی کھل جاتی، بیٹھ جاتی آواز۔ اور ابھی الحمدللہ ہم یہ 1.5 مہینے سے مسئلہ تھا۔ ابھی یہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو سرکار جب تشریف لائے ہیں سیٹ پہ تو الحمدللہ اس کی آواز ٹھیک ہو گئی ہے، الحمدللہ بولنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ مسلسل جب یہاں پہ آئی تھی تو اس وقت اس کی زبان یہ بول نہیں سکتی، آواز بند تھی، اس کی مکمل طور پہ آواز بند تھی کہ جس طرح بندہ کہتے کہ اس کی آواز ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی تھی، بالکل اشارے سے بول رہے تھے، اشاروں سے بات کرتی۔ اور جس وقت بادشاہ سرکار اسٹیج پہ پہنچے ہیں اللہ کا ذکر ہوا تو اس وقت اس نے خود بولنا شروع کیا ماشاءاللہ۔ پھر آپ بھی اس ذکر میں شریک ہو گئے۔ تو بادشاہ سرکار آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ کی آمد پہ اللہ کا ذکر ہوا اور پھر اللہ نے اس کو بولنا نصیب کر دیا؟ بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے۔ دم تو خالی بہانہ ہے، جب انسان ارادہ سچا کر کے نیت اچھی کر کے اللہ والو کی بستی کی طرف صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی دہلیز کی طرف چلتا ہے تو میں اس یقین سے بیٹھا رہتا ہوں کہ جو بھی اس دروازے پہ آئے گا وہ کبھی خالی نہیں جائے گا۔ اب یہ میری بہن دم سے قبل، دم ہی سے قبل، ابھی آپ کو دم نہیں ہوا تھا؟ دم نہیں ہوا تھا، اور دم ہی سے قبل یہ مہینے 1.5 سے ان کی زبان بند تھی اور 3 دن سے مسلسل اشاروں سے بھی بات کرنا مشکل ہو گئی تھی، اتنی تکلیف میں تھی۔ اور جب یہاں پہنچے تو
दम से कबल ही ठीक हो गए। अल्लाह ताला ने अपने करम से एक वली कामल सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर व संजफ अली सरकार के बबरकत मज़ार के वसीले से अल्लाह ने इनकी ज़बान खोल दी। ये वो दहलीज है जहाँ बेज़बानों को अल्लाह ज़बान देता है, जो लाचार है चल नहीं सकते अल्लाह ताला उन्हें चलने की तौफीक अता फरमाता है। और मैं यूँ समझता हूँ कि ये वो दहलीज है जो रास्ते से भटक चुकते हैं, जब अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नेक रास्ता भी दिखाता है। जहाँ जिस्मानी शफाएं पाते हैं वहाँ रूह की भी शफाएं पाते हैं। अब कई हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने अकीदे इरादे औलिया अल्लाह के आस्थानों से छोड़ चुके थे, लेकिन वो जब मरकज़ी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में आए तो खुदा का करम उन्होंने देखा तो दोबारा उस रास्ते पे चल पड़े। अब ये देखें, बात करने की होती है कि मैं दम करता, मैं इनसे बात करता, मैं मर्ज पूछता, मरीज को देखता, तो फिर शफा होना एक अकल तस्वर करती है। अकल ये कहती है कि ये 3 प्रोसेस होना जरूरी है, दम करते, दुआ करते, बात पूछते, मर्ज के मतलब पूछते, लेकिन इससे पहले ही इसको शफा हो गई है। इसका मकसद ये है कि जब अल्लाह वालों के दहलीज पे बंदा दाखिल होता है तो सख्तियां और मुसीबतें और बलाएं बंदे को छोड़ जाती हैं। तो इसलिए याद रखें, किसी हकीम तबीब आमल नजूमी का आस्थाना हो तो कोई असाब करता है, कोई किताब करता है, मेरी तो यही दुआ काम होती है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा लिख दी है। और ये जब इरादा सच्चा करके घर से चले तो दहलीज पे पहुंचना ही था कि मेरे रब ने शफा अता फरमा दी। इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती। अब डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर कौन सी दवाई देता, दौरे जदीद है। देखें, एक बंदे को फॉलोज है, एक को ब्लड कैंसर है, एक को सर की तकलीफ है, एक को दिल की तकलीफ है, एक स्टोमिक मैदे की, किडनीज की, जो भी मेडिकल हिसाब से चीजें आती है उसकी दवाई है, लेकिन बेज़बान की दवाई मेरे रब के पास मौजूद है। बेज़बानों को मेरा रब देता है। इसलिए जब साइंस जहां से खत्म हो जाती है वहां अल्लाह के बंदे शुरू कर देते हैं, वहां से इब्तिदाए अल्लाह वालों की इब्तिदा शुरू हो जाती है। इसलिए पूरी दुनिया में अक्ल है, अब सोचने की बात है, समझने की बात है। ये जानबूझ के कोई ज़बान बंद नहीं कर सकता, हो नहीं सकती। छोटा सा मासूम बच्चा है, घर है, अब उससे पूछें जो बोल नहीं सका। और बड़ी बात यह है कि औलिया अल्लाह के आस्थानों पे हर रोज जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा होता रहता है। और इस जिक्र की इतनी बरकत होती है कि जब उनकी हुदूद में बंदा दाखिल होता है तो उस जिक्र की बरकत से अल्लाह इन्हें शफाए अता फरमा देता है। अब मेरी बहन, आप ठीक हैं? आप पढ़ी क्या हैं? बीए किया हुआ है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है। बीए किया हुआ है, अभी कहीं पढ़ा रही है या घर में ही है? बीए किया हुआ है। अब देखिए, पढ़ी लिखी है। देखो, एक अनपढ़ हो, जाहिल हो तो कोई बात नहीं है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी देखें, अब जबान बंद होना, एक इंसान पढ़ा लिखा है। देखिए, एक बंदा माजूर बचपन का अंधा है तो उसे एक ओस्त होता है कि मैं रास्ते का तयन किस तरह करता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर चली जाए ना, उसकी जिंदगी दुनिया में एक बिल्कुल अंधेरी कब्र हो जाती है। एक बंदा बोलता है, एक बच्चा बचपन से नहीं बोलता है, अल्लाह ने उसे कुव्वते गोई बोलने की ताकत ही अता नहीं की, लेकिन एक इंसान को ताकत गोई मौजूद है, बोलने की ज़बान की ताकत मौजूद है। अगर वो ना बोल सके तो उसके दिल से पूछे, मेरी बहन से पूछे कि आप कितनी तकलीफ में होती थी, कितनी दर्द में हो सकती है, अपना दर्द भी बंदा बता नहीं सकता। इसलिए मेरा पूरी दुनिया में ये पैगाम है दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ की जानिब से कि हुसैन पाक ने ये साबित कर दिया कि हक हक होता है, चाहे 100 बार उसे काटा जाए वो बुलंद ही रहता है, और बातिल बातिल होता है, चाहे वो आसमान की बुलंदियों में चला जाए फिर भी जमीन की तह में चला जाता है। इसलिए अल्लाह वालों के दरवाजे जो होते हैं वो हक के दरवाजे होते हैं, ना कहीं बिदअत है और ना कोई शिरक है। अब यहाँ आकर किसी ने ये तो नहीं कहा कि बाजार के ऊपर सजदा करो, ये किसी ने नहीं कहा, बस अल्लाह के वली के पास आए हो, हाथ उठाना हमारा काम है, शफा देना मेरे रब का काम है। अब देखें, अब कितनी खूबसूरत तरीके से अपने बच्चे के साथ, अपने घर वालों के साथ यहाँ से लौटेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज की समझ नहीं है, वो कहते हैं ना अक्ल यार है सो बेस बदल लेता है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जायद है न हकीम है। अकल कहता है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कोई यार को। ये उन लोगों का है, लोग कहते हैं बाजार की तरफ चले, डॉक्टरों की तरफ चले, लेबॉर्टरियों की तरफ चले, ये अकल वालों की बात थी, लेकिन इनके दिल में मोहब्बत थी अल्लाह वालों की, ले आए, उसी मोहब्बत ने इन्हें शफा अता फरमा दी। तो बात यह आज की जो रात है बड़ी अजीब रात है, बड़ी रात है। करबला वालों ने ये साबित कर दिया जमाने में कि न भूख और न प्यास,
ना दर्द और ना गम बंदे को रोक सकते हैं, बस अगर रोकता है तो नीयत रोकते हैं। इसलिए जिस शख्स की नीयत ठीक होती है वो कभी भी दर दरवेश से खाली नहीं जाता। इसलिए जो भी रब हम पे करम करता है हमारी नीतों को देख के, हमारे इरादों को देख के, अल्लाह पाक हमारे इरादों को सच्चा फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमान पे जहाँ भी कोई परेशान हाल है, मुसीबत में है, किसी दुख में है, तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन के वसीले से उस पे अपना करम और मेहरबानी फरमाए। और मैं इनके, मेरी बहन के, ऐसी मेरी कई बहनें हैं, कई ऐसी चीजें, यहाँ इनसे पूछ लें, कोई गैर शरी, कोई कहानी, कोई किताब, कोई ऐसी चीज देखी नहीं, अल्लाह वालों के पास से जो गुजर जाता है रब उसे शफा देता है। ये मेरा यकीन है, ये मेरा अकीदा है। इसलिए मेरा ये पैगाम पूरी दुनिया में है कि आज का दिन, कल का दिन जो है वो इंतहाई अदब व एहतराम से और गम हुसैन के अंदर मनाओ। गम का मतलब ये है कि हुसैन का दर्द महसूस करो, और हुसैन का दर्द वही महसूस करता है जिसके दिल के अंदर खुदा और खुदा का खौफ और अहले बैत की मोहब्बत होती है। और वो दर्द क्या है कि हुसैन का तरीका करो। हुसैन पाक ने क्या तरीका अमल किया था, ये देखिए, हुसैन पाक ने ये नहीं कहा था मेरे पास अभी पानी नहीं है, मेरे बच्चे प्यासे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जो कुछ भी नहीं है, लेकिन है अल्लाह, मैं तुझको राजी करने के लिए तेरी बारगाह में अपना सर तो है वो जो मैं झुका दूंगा। इसलिए हुसैन पाक हमारे लिए पैगाम छोड़ गए कि किसी भी हालत में हो तो मजलूम की मदद रब फरमाता है और जालिम की गिरफ्त जो है वो रब के हाथ में है। इसलिए जो भी जिस हालत में हो नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने झुको, और जो भी देता है वो मेरा खुदा देता है। अल्लाह करीम तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना खसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। दुआ सारी उम्मत मुसलमान के लिए, हाथ खड़े करें ताकि मेहरबानी हो जाए। आमीन 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 आमीन।